A very good morning students। आज आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ांगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। संश्लिष्ट कपड़े प्लस धागे प्लस प्लास्टिक। फर्स्ट, द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जिहड़े असी कपड़े पाने आ वो काहदे बने हुंदे ने? फैब्रिक्स दे। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑबटेन फ्रॉम नैचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सिस। ते जिहड़े ओह फैब्रिक्स हुंदे ने वो काहदे बने हुंदे ने? धागे दे। बट वो जिहड़े धागे ने सानूं कित्थों मिलदे ने? जां तां नैचुरल हुंदे ने जां की हुंदे ने वो आर्टिफिशियल। कैन यू नेम सम नैचुरल फाइबर्स? की तुसीं दस सकदे हो कुछ कुदरती जिहड़े फाइबर्स हुंदे ने, धागे हुंदे ने जिहड़े मिलदे ने सानूं? ते ओह हैगे ने जिवें कॉटन, वूल, जिहड़े सानूं प्लांट्स ते एनीमल्स तो मिलदियां ने। Fibers are also used for making a large variety of household articles। फाइबर्स साडे घरां दे विच इहो जिहियां होर कई चीज़ां ने जिहड़ियां कि धागे दियां बणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जिवें कि पर्दे हो गए, कारपेट हो गए, कंबल, ये सब कुछ काहदे बने हुए ने? फाइबर्स दे बने हुंदे ने। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। एक लिस्ट बनानी है जिहड़े कि फाइबर्स दी बनी हुंदियां ने चीज़ां। ट्राई टू सैपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नैचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो उस तो बाद जिहड़ी तुसीं लिस्ट बनाओगे उन्हां विचों अलग अलग करना भी जिहड़े नैचुरल फाइबर दे बने होणगे उन्हां नूं अलग लिखना ते जिहड़े आर्टिफिशियल होणगे उन्हां नूं अलग लिखना वा। जिवें तुहाडे कोल टेबल दिता होया वा, नेम ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दा नेम लिख लेना वा। जिवें एग्जाम्पल असीं लिखदे पए आ कारपेट। टाइप ऑफ फाइबर वो किहड़े ने? वो नैचुरल है जां आर्टिफिशियल दा बनिया होया वा। सेम नैक्सट, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। तुसीं क्यों कुछ जिहड़े उपर टेबल दे विच कुछ जिहड़े धागे सी तुसीं उन्हां नूं आर्टिफिशियल क्यों किहा वा? You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ 7, 6 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਾਟਨ ਤੋਂ, ਵੂਲ ਤੋਂ, ਸਿਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਮੇਡ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਔਰ ਮੈਨਮੇਡ ਫਾਈਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਪਲੱਸ ਮੈਨਮੇਡ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਆਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੈਟਰਨ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਅ ਨੈਕਲੇਸ ਆਫ ਬੀਡਸ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਥ੍ਰੈਡ। ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੈਕਲੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੀਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਫਿਗਰ 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਪਰ ਕਲਿਪਸ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਚੇਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੇਪਰ ਕਲਿਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ 20 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ? ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, A synthetic fiber is also a chain of small unit joined together। synthetic fiber ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੈਕਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਡ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਕਲੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਾਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਮਰ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੀ, ਮਰ ਮੀਨਸ ਪਰ, ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ। ਸੋ ਪੋਲੀਮਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਮੈਨੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਮਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਮਰ ਅਕਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆਲਸੋ। ਪੋਲੀਮਰ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਕਾਟਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਟਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਮਰ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਲੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਲੂਲੋਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ। ਨੈਕਸਟ, टाइप ऑफ सिंथैटिक फाइबर। हुण असीं पढ़ने ने अलग अलग तरह दियां सिंथैटिक फाइबर्स हुंदे ने, वो किहड़े किहड़े हुंदे ने। फर्स्ट साडे कोल हैगा रेयोन।
You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. 7th क्लास पढ़िया सी भी सिल्क फाइबर आ सानू सिल्कवर्म तो मिलती है प्लस ये डिस्कवर हुई सी चाइना दे विच। फैब्रिक ऑबटेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वाज वेरी कोस्टली तो जी सिल्क फाइबर आ बहुत ज़्यादा की आ महंगी आ बट इट्स ब्यूटीफुल टैक्सचर फैसीनेटेड एवरीबडी बट जोड़ा ये कपड़े का टैक्सचर हुंदा वा ओह की करदा वा हरेक बंदे नूं अट्रैक्ट करदा वा अपने वाल खिंचदा वा। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो 19th सेंचुरी का एंड सी साइंटिस्ट वर सक्सैसफुल इन ऑबटेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू डैट ऑफ सिल्क तो जिद्दां दी प्रॉपर्टी सिल्क दे विच हुंदी सीगी उद्दां दी प्रॉपर्टी उन्होंने किसी होर च भी दिखी। सच अ फाइबर वॉज ऑबटेन बाय कैमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प बट जी वो प्रॉपर्टी सी वो जो असी वुड पल्प नूं लैके उन्होंने कैमिकल नाल ट्रीट करते सी तो उस तो बाद उहदे विच दिखी। दिस फाइबर वॉज रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क तो वो जी फाइबर से उन्होंने नवा फाइबर मिलिया सी वो सीगा रेयन प्लस उन्होंने कहते सी आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज़ ऑबटेन फ्रॉम आ नैचुरल सोर्सिस जो रेयन आ कुदरत तो मिले क्योंकि जो दरख्त आ वुड पल्प आ कुदरत दी आ बट जैट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर बट यह है कि सीगा मनुख द्वारा बनाया गया सीगा। इट इज़ चीपर दैन सिल्क ये सिल्क तो बहुत सस्ता सी आप उपर पढ़िया सिल्क बड़ी महंगी आ एंड कैन भी वोवन लाइक सिल्क फाइबर तो ये जो बुनते ये सेम आ एज अ सिल्क फाइबर वांगू दिखता वा। इट कैन ऑल्सो भी डाई इन वाइड वराइटी ऑफ कलर इनू असी डाई कर सकते हैं अलग अलग रंगों के रेयन नू। रेयन इज़ मिक्स विद कॉटन टू मेक बैडशीट और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट जो रेयन नू असी कॉटन नाल मिक्स कर देंगे तो बैडशीट बन सकती है मतलब चादर बन सकदियां ने बट जो असी रेयन नू वूल दे नाल उन दे नाल असी उहनूं मिक्स कर देंगे तो कारपेट बन सकते हैं जिवें कि इस फिगर दे विच तुहानूं दिखाया गया वा। सैकेंड वन इज़ नेओन। नेओन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर ये भी एक सिंथेटिक फाइबर आ प्लस मैन मेड फाइबर आ। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नैचुरल रॉ मटीरियल ये जो नायलोन आ ये विदाउट कोई भी कुदरती तौर पर प्लांट के एनीमल्स का जो नैचुरल रॉ मटीरियल से उन्होंने बिना यूज़ किए बनाया गया वा। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर कोला हो गया पानी हवा ये तीन चीज़ों जो नेओन आ बनाया गया सी। इट वॉज द फस्ट फुली सिंथेटिक फाइबर ये पहला यह जहा सीगा फाइबर जोड़ा कि फुली पूरी तरह एक आर्टिफिशियल सीगा। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ प्लस इलास्टिक मतलब खिंचन योग आ प्लस लाइट तो यह बहुत हल्का वा। इट वॉज लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश बड़ा चमकीला प्लस असी इनू ईजीली वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकेम वैरी पॉपूलर फॉर मेकिंग क्लोथ इसलिए यह बहुत ज़्यादा की नायलॉन के कपड़े बनाए जाते हैं। वो यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन नायलॉन दी काफ़ी चीज़ां बनदियां ने जिवें कि सॉक्स मतलब जुराबां रोप रस्सी टेंट टूथब्रश कार सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग कर्टनस एक्सैट्रा जिवें कि फिगर दे विच दिखाया गया वा फिगर 3.3 दे विच वेरीअस आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन। नैक्सट एक तुहानूं दिता होया वा इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग कहते नायलॉन फाइबर इन्ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंदा डैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग कि असी नायलॉन के फाइबर के नाल एक तो पैराशूट भी बना सकते हैं प्लस असी रस्सी भी बना सकते हैं जिन्हें असी पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं जिवें कि आ फिगर दे विच तुहानूं दिखाया गया वा। यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर क्लाइंबिंग रोप क्लाइंबिंग। ए नायलॉन थ्रैड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर दैन अ स्टील वायर जो नायलॉन फाइबर है इन्ना क ज़्यादा स्ट्रोंग होंदा स्टील वायर जी होंगी वो नालों भी ज़्यादा स्ट्रोंग होंदा वा। लेट अस फाइंड आउट तुहाडे कोल एक एक्टिविटी दिती हुई है टेक एन आयरन स्टैंड विद द क्लैम्प टेक अ कॉटन थ्रैड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लैंथ एक लोहे का स्टैंड लेना वा विद क्लैम्प भी जिहदे सहारा दे सकीए प्लस एक कॉटन थ्रैड लेना जिहड़ा कि 60 सेंटीमीटर लंबा हो। नैक्सट टाई इट टू द क्लैम्प सो डैट इट हैंग फ्रीयरली फ्रॉम इट एज शोन इन अ फिगर 3.5 3.5 जिवें दिखाया हुआ धागा लेना उन्होंने की करना वा उहदे उत्ते लमका देना वा 60 सेंटीमीटर जी उहदी लेंथ होनी चाहिए। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड अ पैन सो डैट वेट कैन बी प्लेस इन इट उस तो बाद एक पैन लेना तो उहदे उत्ते जिहड़ा वेट आ वो रख देना वा। एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रैड ब्रेकिंग जब तक रखी जाना वा असी वेट उहदे उत्ते थ्रैड दे उत्ते जब तक कि आ ओह टुट ना जाए धागा।
नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रैड। उस तो बाद नोट करना सी कितना वेट रखा तो कदों थ्रैड टुटिया। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ये तो पता लगूगा कि जो फाइबर आ वो किस तरह का, उसकी स्ट्रेंथ किहो जी हैगी आ, किन्नी क्षमता वा उसकी वेट चक्कन की। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रैड ऑफ वूल, पॉलीएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। इस तरह ये अलग अलग एक्टिविटी आ, अलग अलग फाइबर लैके करनी आ, देखना वा। दैन एक टेबल दिता होया वा। उस तो बाद असीं देखांगे यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबरस। इस तरह कर सकते हो, एक हुक या कंध दे विच एक मेख भी लगा के तुसीं उन्हां कुछ हैंग करके भी देख सकते हो, पॉली बैग या कोई होर चीज़। एंड इन प्लेस ऑफ वेट दे मे यूज मार्बल्स और अ सिमिलर साइज़। की कर सकते हो तुसीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पत्थर हो गए तो तुसीं ਜਾਂ कोई कंकर हो गए, तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एज अ वेट असीं तुसीं ਉਹਨੂੰ यूज़ कर सकते हो। Precaution: note that all threads should be of the same length and almost of the same thickness। जरूरी नहीं कि जो सारे थ्रैड्स लिते ने उन्होंने लैंथ ते प्लस वो पतले या मोटे डिफरेंट भी हो सकते हैं वो। नेक्स्ट वन इज पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलीएस्टर एक होर की है, एक आर्टिफिशियल फाइबर आ। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गैट रिंकल्ड ईजली। इन्हां विच बड़ी जल्दी झुर्रियां नहीं पैंदियां, मतलब मुच्चड़दे नहीं हैगे ये। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये बड़ी जल्दी सीधे हो जाते हैं प्लस ईजी टू वॉश ने। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रैस मटीरियल। इस करके ये ड्रैस असी ईजिली बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलीएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रैसिस। तुसीं देखिया होना लोगों भी अलग अलग तरह दी शर्ट्स पाई होंदियां ने, पॉलीएस्टर दी बनिया होंदियां ने, प्लस कोई होर ड्रैसां भी बनिया होंदियां ने। टैरलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर की एक टाइप आ डैट इज़ टैरलीन। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन fiber that can be woven like any other yarn. Next, my mother always buy pet bottles and pet jars for storing rice and sugar in wonder what pet is। कहते मेरी मदर हमेशा बॉटल्स, प्लास्टिक दी बॉटल्स होंदियां ने वो PET वालियां खरीदते हैं, ਜਾਂ कोई जार खरीदते हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ चावल ਜਾਂ चीनी रखनी होंदी है तो वो भी PET ਜਿਹੜੇ जार होंगे ने वो खरीदते हैं। तब क्यों? नैक्सट PET इज़ अ वैरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर। जी PET आ पैट जिन्होंने कह दें वो बड़ी की आ पॉलीएस्टर की एक फॉर्म आ, जिहदे नाल की आ असीं बॉटल्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, कोई फिल्म्स हो गई, वायरस हो गई, या कोई होर यूजफुल प्रोडक्ट हो गए, सारे पॉलीएस्टर के बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलीएस्टर। नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ कैमिकल कॉल्ड एन एस्टर। जिवें पॉलीमर सीगा सेम पॉलीएस्टर है, ये पॉली लिखा है तो मतलब रिपीटिंग यूनिट आ, मैनी, पर एक आधा बनया हुआ वा कैमिकल है एक एस्टर। एस्टर आर द कैमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मैल। एस्टर एक कैमिकल आ, रसायनिक आ, जिहड़ा कि दिंदा वा एक जिवें कि फ्रूट की स्मैल हुंदी है उदां दा। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीक्लोथ, पॉलीवूल, टैरीकोट एक्सैक्ट्रा। जिहड़े फाइबर्स बिकते हैं वो इस नेम नाल बिकते हैं, जिहड़े नाम दिते हुए तुहानूं पॉलीकोट, पॉलीवूल, टैरीकोट। एज द नेम सजैस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। इन्हां दे विच की होया है वा दो तरह के जिहड़े फाइबर्स ने मिक्स होकर बिकते हैं। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। जिवें पॉलीकोट, कोट मीनस कॉटन, पॉली मीनस पॉलीएस्टर, ये दोनों का मिक्सचर होकर की बन गया पॉलीकोट। सेम पॉलीवूल दे विच पॉलीएस्टर एंड वूल, टैरीकोट दे विच टैरेलीन प्लस कॉटन। वी वेयर स्वैटर एंड वी यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। जिवें सर्दियों के विच असीं स्वैटर हो गया, शॉल हो गया, या कंबल असीं यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नैचुरल वूल। देखा जाए तो यह कुदरती जी वूल होंगी वो नहीं बनते, दो दे अपीयर अ रिसैंबल वूल। रिसैंबल मतलब कि जिवें सेम सेम दिखना, दिखते की ने वो वूल दे ही ने। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। जद कि वो बने किसी होर आर्टिफिशियल फाइबर दे जिन्होंने असीं कहने एक्रेलिक। द वूल ऑबटेन फ्रॉम नैचुरल सोर्सिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा महंगे होंगे ने। वेयर एज क्लोथ फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। प्लस जो एक्रेलिक होंगे वो बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। दे आर अवेलेबल इन अ वरायटी ऑफ कलर। अलग अलग कलर्स दे मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नैचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की ने ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिक होंगे ने, प्लस अफोर्डेबल असीं ईजीली इन्हूं खरीद सकते हैं, प्लस पॉपुलर बड़े ने नैचुरल फाइबर्स के नालों। नैक्सट
ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਫੋਰਮਡ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫॉर ਬਰਨਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ 7 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਬਰਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਮੈਲਟ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆ। ਇਫ ਦ ਕਲੋਥ ਕੈਚ ਫਾਇਰ, ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਅੱਗ ਫੜ ਲੂਗਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦ ਫੈਬਰਿਕ ਮੈਲਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕਸ ਟੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਇਟ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਪਕੜੂਗੀ। We should therefore not wearing synthetic cloth while working in a kitchen or in a laboratory। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕਲੋਥ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Oh, now I understand why my mother never wear polyester cloth while working in the kitchen. All the synthetic fiber are prepared by the number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਲੈਸਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।